Can everyone see the presentation? Yes, ma'am, it is visible. Hello? Hello, yes, ma'am, it is visible. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shivi, Shrishti? Yes, ma'am, you are audible. मुझे आवाज नहीं पहुंच रही है इसका मतलब. हाँ, अभी बोलना. ओके. Hello, हाँ ma'am, हाँ, you are audible. ठीक है, अभी आ रही है आवाज. Okay, ma'am. Okay, so today we'll start with the schools of Western psychology. We'll try to cover all the main schools in brief because we are going to study all these schools in detail in further units. Okay, so we'll try to have an overview about all the schools. So these are the main schools of thought in psychology, starting with structuralism, and then up as opposed to structuralism, functionalism arose. Okay, structuralism was given by William Wundt, while functionalism was given by William James. Then behaviorism, school of behaviorism came, and its pioneers include Ivan Pavlov, then John Watson, then B.F. Skinner. Then, as you all know, psychoanalysis came, and it was given by Freud. Then the humanistic branch of psychology also came out, and the main pioneers were Abraham Maslow and Carl Rogers. Then Gestalt psychology, where the principles of Gestalt were given, and it was driven by Max Wertheimer, Kurt Kofka, Wolfgang Kohler. Then we have cognitive psychology, and the main pioneers are Ulrich Neisser, and he actually gave the first textbook on cognitive psychology. ठीक है, पहली टेक्स्ट बुक दी थी इन्होंने. And Miller 2000 in 2013, he is known for the growth of cognitive revolution. Okay, जब behaviorism में ज्यादा लोग खो चुके थे, तो ये काफी टाइम बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी अराइज हुआ था, जहाँ पे things were connected more with the mind rather than the outside behavior. So they were trying to create a bridge between this behavioristic outer world and our inner world. Okay, so there was a time of cognitive revolution, and even Chomsky is one of those who talks about language, linguistic skills. So let's start with structuralism. Structuralism, as you all know, is given by Wilhelm Wundt. He is also the founder of first psychology lab. Experimental lab की जब बात होती है तो Wundt की बात होती है, right? And this is the very first school of psychology, and it focuses mainly on breaking down the mental processes into basic components. आपके mind के जितने भी processes हैं, उनको break down किया उन्होंने components के अंदर, in order to try to understand how it works. Okay, so structure पे ज्यादा focus किया गया, mind को different different structures में divide किया गया. Okay, then उन बेसिक एलिमेंट्स को समझने की कोशिश की गई. द मेजर टेक्निक दे फॉलोड फॉर दिस इज इंट्रोस्पेक्शन. So introspection is one of the major technique followed by Wundt and his students. Okay, to understand this, to understand the element of consciousness. His student was Edward B. Titchener,
who first coined the term to describe this school of thought. Okay, so he was the one who actually coined this term, especially introspection. Wundt's version of introspection used only very specific experimental conditions in which external stimulus was designed to produce a scientifically observable, repeatable experience of mind. तो वुंड का जो प्रोसीजर था, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था, that was like quite rigid. उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेट करी थी इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एक्सपीरियंस ऑफ माइंड. ये माइंड में क्या चल रहा है, इंट्रोस्पेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक साइंटिफिक कंडीशन बनाई है जिसमें वो अपने ही माइंड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. राइट, सो द आउटपुट वाज इन अकॉर्डेंस विद दोज एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. ठीक है, उन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के दायरे में जो कुछ होगा वो वहीं तक रिजर्व था. So that the major drawback here is it cannot be generalized to other people or to large population because experimental conditions are very specific. Titchener development of structuralism helped establish the very first school of psychology, but structuralism itself did not last long beyond Titchener's death. तो ये स्कूल आफ्टर टिचनर्स डेथ इस स्कूल पे ज्यादा काम नहीं हुआ, तो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा. So this was the basic criteria. The strength and criticism about this school. So today's scientific standard, the experimental method जो आज भी हम follow करते हैं. Okay, so in today's time, जो experimental methods we used to follow are very very objective in nature. मतलब they try at least that it should be objective in nature. But अगर हम वुंड के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की बात करते हैं तो even they were quite subjective in nature. Okay, use of introspection lead to lack of reliability in result. तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बहुत अच्छा मेथड नहीं माना गया है क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं होगी. आप अभी कुछ और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कल को कुछ और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो it may lack reliability. Other critics argue that structuralism was too concerned with internal behavior which is not directly observable and cannot be accurately measured. तो again वो क्या कह रहे हैं, अगर हम internal behavior पे focus कर रहे हैं, if we are focusing on our inert behavior, internal behavior which is not observable in nature, again subjectivity arise होगी यहाँ पे, और उसके हम जो उसको measure कर रहे हैं उसकी accuracy पे भी question mark लगाया गया है. Okay, there is a question mark again due to subjectivity and the expertise of the person who is trying to introspect that thing. Okay, structuralism is important because it is the first major school. The structuralist school also influenced development of experimental psychology. तो but later on जब experimental psychology बना है तो कहीं ना कहीं जो foundation था वो structuralism से मिला, because Wundt was the first one who established that kind of experimental lab. Okay, so that create a foundation for experimental psychology. Then, as reaction to structuralism, functionalism was formed. It was given by William James, and it is also based on the evolutionary theory of Charles Darwin. Charles Darwin की theory पता है आप लोगों को? मैम इट्स द एवोल्यूशन थ्योरी ना, एवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने की थी चार्ल्स डार्विन. एनी प्रिंसिपल यू रिमेम्बर डार्विन क्या कहते थे? नो मैम उतना नहीं याद है. Survival of the fittest. Yes, survival of the fittest, survival of the best fit, right? that kind of thing actually. एग्जाम्पल के लिए वो हमेशा एक जिराफ की स्टोरी देते थे, बहुत फेमस रहता है वो जिराफ वाला एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज बीन सेड दैट earlier giraffe do not used to have those long necks, but to survive they used to like extend their neck and so that they can eat some leaves from the trees. Okay, and gradually what happened, only those giraffes survived with like those who have very long necks, something kind of that. So with evolution all giraffes were like with very very long necks so that they can eat tree leaves which are very far away.
This is just one of the example given by Darwin. Okay, so यहाँ पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? Because it is related to our functionalism school of psychology, जहाँ पे function is more important than the structure. अभी हमने structuralism की बात करी, but यहाँ पे we are talking about function. Okay, it is not about the structure of mind, it is more about the function of mind. Okay, so it explains the mental processes in a more systematic and accurate manner rather than focusing on element of consciousness, जो कि structuralism ने किया गया था, consciousness के elements बना के focus किया गया था. Now functionalism, it focuses on the purpose of consciousness and behavior. ठीक है, whatever consciousness we are operating, whatever behavior we are emitting, what is the purpose behind it? What is its functional utility? क्या है उसका? It also emphasizes on individual differences, okay, which has impact on their education or evolution, you can say. Individual differences पे भी यहाँ पे फोकस किया है, क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं और फंक्शनिंग में कुछ कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस आ सकते हैं. Some of the important functionalist thinker include James, John Dewey, Harvey Carr, John Angel. ये सारे functionalist thinker हैं जिन्होंने functionalism को ही promote किया further. It focused on how mental activities help an organism fit into environment, जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से मैच करता है. It were more interested in operation of whole mind rather than of its individual part, which were the focus of structuralism. Structuralism में हमने parts पे focus किया, different parts क्या काम कर रहे हैं उस पे focus किया. लेकिन हम functionalism में एज अ होल देख रहे हैं, ओवरऑल इनके साथ जब रख दिया जाए इन सबको तो क्या काम होता है, फंक्शन वाइज क्या काम होता है, वो फंक्शनलिज्म में आया. Strength and criticism, if we talk about, this was again criticized perhaps most famously by Wundt itself. Wundt ने भी इसे criticize किया. उन्होंने कहा it is literature, it is beautiful, but it is not psychology. Functionalism influenced the development of behaviorism and applied psychology. So later on, behaviorism और applied psychology की branches में आप functionalism की झलक देख सकते हैं. Functionalism also influenced the education system, especially with regard to John Dewey's belief that children should learn at the level for which they are developmentally prepared. So John Dewey ने क्या कहा? Every child should learn at the level of their developmental stage. ठीक है, we have certain stages of development. हर बच्चे का अपना अपना एक स्टेज है, वो जिस स्टेज में लाई करता है डेवलपमेंट की, उसको उसी लेवल के हिसाब से लर्निंग करनी चाहिए. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रोनोलॉजिकल एज, दे आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल एज एज वेल. ठीक है, तो डेवलपमेंटली आप जिस स्टेज में हो, बच्चा जिस स्टेज में है, उसी हिसाब से बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए. ओके, so again structuralism studies varied element of consciousness, whereas functionalism studies how consciousness changes according to the environment. ठीक है, any doubt till here? No, ma'am. मैम, जो ये अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस को हम पार्ट्स में डिवाइड करके जो स्टडी की, ये टिश्नर का एग्जैक्टली था स्टडी या वुंड का था? ये स्टार्ट वुंड ने किया था, बट टिश्नर वुंड का ही स्टूडेंट था, तो ही फॉलोड. ओके ओके Okay, so then we have another school that is psychoanalysis, and you know Freud is the main proponent. ठीक है, अब जब हम साइको एनालिसिस अप्रोच की बात करते हैं, एनालिटिकल अप्रोच की बात करते हैं, सो वी कैन स्टडी दिस साइको एनालिसिस इन 4 major domains. One is level of consciousness, another is structure of personality, then we have psychosexual stages of development, and finally we have anxiety and defense mechanism. So these are the 4 main phases where we can understand this. So starting with the level of consciousness. So according to Freud,
we have three major levels of consciousness. One is the surface level, that is conscious level. Then we have the middle level, that is pre-conscious, or you can call it as subconscious level. And then we have the deeper most layer, that is unconscious layer of consciousness. Okay, the conscious layer has all our immediate experiences. Okay, right now whatever you are doing, whatever you are gaining, you are seeing this presentation, it is in your conscious head. Whatever I'm speaking and you are taking it, it is in your conscious consciousness, right? It has limited impact on our personality, and it is just 10% of our whole mind. ठीक है, दिमाग का सिर्फ 10% कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियस स्टेट में आता है. रेस्ट वी हैव एट आवर सबकॉन्शियस लेवल. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू, आपने कल रात को खाने में क्या खाया था, राइट? सो यू विल recall it from your subconscious memory and then tell me. If I ask you, आप हमने कल क्लास में क्या पढ़ाई करी थी, अगेन यू विल रिकॉल इट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस लेवल. इट इज नॉट इन योर कॉन्शियस. आप सबकॉन्शियस से उसको निकालोगे. सो ऑल योर स्टोर्ड मेमोरीज आर पार्ट ऑफ योर प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस. इट कैन बी रिकॉल्ड, it can be bring to conscious, and it is 10 to 15% of our mind. And then we have unconscious level, of which we are totally unaware of. अपने unconscious के बारे में हमें पता नहीं रहता है, वो easily recall भी नहीं होते हैं, but it majorly influences one's action. हमारे action को वो बहुत ज्यादा influence करते हैं, and like approximately 80% of mind is unconscious. And it is influenced by our hidden desires, hidden motives, urges, and etc. etc. Okay, so whatever is not there, consciousness पे नहीं है, subconsciousness पे नहीं है, सब कुछ बाकी rest of the information is stored in unconscious. और हमारी personality majorly हमारे unconscious में जो information stored है उसी से driven रहती है. Okay, so these are the three major levels of consciousness. This is again a topographical model जिसको हम iceberg model भी बोलते हैं, जो फ्रॉइड ने दिया था. Okay, so Freud compared our mind with an iceberg, and you can see this picture. There is a huge iceberg. Most part of the iceberg is underwater. Similarly, most of our mind is here inside, deeper, the unconscious self. ठीक है, the unconscious level of mind. Only a few part, which we call like 10%, is conscious, and we have this part also, which is this is subconscious. Okay, rest major is unconscious, as you can see. So we have our thoughts, perceptions here, then we have stored memories here, then we have in unconscious we have all our instinct, whether it is sexual derived, aggressive derived, fears, unacceptable desires, violent motives, irrational motives, urges, selfish needs, shameful experiences, traumatic experiences. जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में कभी नहीं याद करना चाहते, वो सब अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, राइट? So he called it again the conscious, subconscious, and unconscious, right? Later on, what happened? This is a similar thing which we have just studied. Later on, what happened? He gave structure of personality: id, ego, and superego. Okay, it is very easy to understand, as you can connect ego with your conscious mind, superego with your subconscious mind mostly, and id with your unconscious mind. Okay, so ego follows the reality principle. It follows what is real for you. Okay, जो आपको दिख रहा है, जो सच आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज ईगो हेयर. इट मेडिएट इड एंड सुपर ईगो. सुपर ईगो और इड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में मदद करता है ईगो. दैट इज योर करंट कॉन्शियस स्टेट. इट इज समहाउ रैशनल इन नेचर. नाउ इड को पहले समझते हैं. इड इज, एज आई सेड, अनकॉन्शियस. इड में हिडन डिजायर्स हैं. इट फॉलोज प्लेजर प्रिंसिपल. वो हमेशा प्लेजर सीख करने की कोशिश करता है, right? It has certain basic impulses, immediate gratification, and it is irrational in nature.
इसका कुछ लेना देना नहीं है आप जो सोच रहे हो, जो अर्ज आपके अंदर आ रही है वो कितनी रैशनल है, सोसाइटी अप्रूवल उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इट इज वेरी वेरी इरेशनल। ठीक है, इट जस्ट फॉलोज प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर चाहिए और कुछ लेना देना नहीं है उसको, राइट। बट सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो फॉलोज मोरालिटी प्रिंसिपल। ओके, ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। इड की जो इरेशनल डिमांड्स होती हैं, सुपर ईगो बताता है अरे नहीं, ये चीज सोसाइटी में नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, कंसाइंस, अगेन अंतरात्मा की आवाज, सही गलत क्या है, राइट। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन आप क्लासरूम में हो, यू कैन नॉट शाउट, राइट। वो आपका सुपर ईगो आपको बता रहा है दैट यू कैन नॉट शाउट इन पब्लिक। तो आपका इड कह रहा है चिल्लाओ, एग्रेसिव हो जाओ, सुपर ईगो कह रहा है नहीं, सोशली नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो इड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सुपर ईगो हमारा पेरेंट्स या सोसाइटी की मदद से क्रिएट होता है, बिकॉज हमें बचपन से कुछ रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, अगेन सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, दूसरों के घर जाना है तो कैसे बिहेव करना है, क्या सोसाइटी में आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इड अंदर से अर्ज हो रही है, ये सामान बहुत अच्छा लग रहा है, दुकान पे उठा लेती हूँ, चोरी कर लेते हैं हम इसको। लेकिन सुपर ईगो क्या कहेगा, हमें सिखाया गया है दैट चोरी करना इज रॉन्ग। Okay, so that is morality principle, that is going to help us to control the id, right? And ईगो का क्या काम होता है, ईगो एक्चुअली क्योंकि रियलिटी प्रिंसिपल है तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। जैसे एग्रेशन था, चिल्लाना नहीं था, ठीक है, तो ईड में आ रहा था दैट यू हैव टू शाउट, बट सुपर ईगो कह रहा था दैट यू कैन नॉट शाउट इन पब्लिक। तो ईगो समझाएगा क्या, ईगो कहेगा ठीक है, घर जाके अकेले कमरे में बंद होके जितना चिल्लाना है चिल्ला लेना। तो उससे क्या होगा, इड की भी बात रह जाएगी और सुपर ईगो की बात भी रह जाएगी। तो ईगो थोड़ा समझदार प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, ईगो ही डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप करता है सो दैट ये इड और सुपर ईगो का झगड़ा सुलझ सके। इन दोनों को सुलझाते सुलझाते ये ईगो जो है, ईगो के सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, so we have understood this डिप्रेशन अभी एंजाइटी में आ जाएगा। So Freud later developed a more structural model of mind comprising id, ego and superego, which we have just studied. इसको हम psychic apparatus बोलते हैं। Id is are the instinct, ego is the reality, superego is the morality. Id comprises two kind of biological instinct, which Freud called eros and thanatos. ठीक है, इड की बात हो रही है, इसमें दो इंस्टिंक्ट होते हैं, इरोस एंड थैनाटोस। इरोस होता है हमारा लाइफ लविंग, लाइफ इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो हमें सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू सरवाइव, वी वांट टू लिव, ऐसी वाली फीलिंग्स, दैट इज इरोस। बट थैनाटोस इसका जस्ट ऑपोजिट है, इट इज अ डेथ इंस्टिंक्ट, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये हमारे अंदर एक। ठीक है, so it directs life sustaining activities such as respiration, eating, sex, ये सब इरोस से आ रहे हैं। ठीक है, दिस एनर्जी क्रिएटेड बाय लाइफ इंस्टिंक्ट इज नोन एज लिबिडो। तो ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट से जो एनर्जी क्रिएट होती है, साइकिक एनर्जी इसको हम बोलते हैं, इसको हम लिबिडो बोलते हैं। ठीक है, टुवर्ड एनर्जी टुवर्ड सर्वाइवल। बट डेथ इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें, थैनाटोस की बात करें, it is a destructive force present in all beings. When this energy is directed outward onto others, it is expressed as aggression and violence. ये हमारे death instincts हैं। Freud believed that eros is stronger than thanatos. तो life instinct हम सबके अंदर death instinct से ज्यादा strong होता है। तभी हम अक्सर कहते हैं ना that we can like conquer something with love, because love, feeling of love, vibration of love is stronger than even death. So that is why this survival instinct can help one from self-destruction. The ego develops from it during infancy. Ego's goal is to satisfy the demand of it in safe, socially acceptable way. ये मैं example आपको अभी बता चुकी हूँ, जब मैंने कहा था कि ठीक है आप रूम में बंद होके फिर रात को में चिल्ला लोगे, अकेले चिल्ला लोगे, तो ईगो आपके इड की डिमांड्स को सोशली एक्सेप्टेबल वे में कैसे एग्जीक्यूट करना है उसमें मदद करेगा।
ठीक है, सुपर ईगो बताया था पेरेंट्स और सोसाइटी की वजह से डेवलप हो पाता है इजीली, जो हमें अगेन वो भी हेल्प करता है कैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करना है. देन वी वर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म. सो ये ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो ईगो की वजह से डेवलप हो पाते हैं, क्योंकि जब इड की इम्पल्सेस बहुत हाई होती हैं, ठीक है, और ईगो उनको नॉर्मल लेवल पे हैंडल नहीं कर पाता है, तो उससे एंजाइटी अराइज होने लगती है. ठीक है, आप कॉन्शियसली ईगो के लेवल पे कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो. ठीक है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन आप क्लासरूम में हो, लेकिन आपका ईगो आपको कोई सजेशन नहीं दे पा रहा है, कि आप सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा है आपको, तो क्या होगा, एंजाइटी होगी बहुत ज्यादा, सप्रेशन, ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है, यू वांट टू शाउट बट यू कैन नॉट शाउट, यू आर फीलिंग सफोकेटेड, एंजाइटी अराइज हो रही है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा. हो सकता है आपके आसपास आपके घर में कोई पेट हो, कोई छोटा भाई बहन हो, आप उसके ऊपर चिल्ला दो, सारा गुस्सा वहां निकाल दो, जबकि उसका कोई गलती भी नहीं थी, उससे गुस्सा आया भी नहीं था. दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, तो जब हम इड की डिमांड्स हमारा ईगो हैंडल नहीं कर पाते और एंजाइटी बढ़ जाती है, तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं कोप करने के लिए. डिफेंस मैकेनिज्म कोपिंग की तरह ही काम कर रहे हैं, बट कुछ फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक भी होते हैं. Just a minute. So we have several defense mechanisms like denial. जब हम किसी चीज को टोटली मना कर देते हैं आउट ऑफ एंजाइटी, लाइक फॉर एग्जांपल स्मोकर्स, दे टोटली डिनाई कि स्मोकिंग से उनकी हेल्थ को कोई नुकसान भी होता है, तो उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है. दे आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट एंड दे सिंपली डिनाई कि नहीं, मेरी हेल्थ को तो मैं तो इतने साल से स्मोक कर रहा हूँ, कोई इशू हुआ नहीं है. राइट, रिग्रेशन होता है. रिग्रेशन में हम अपने थोड़ा वी गो इनटू आवर चाइल्डहुड टू कोप विद इट, थोड़ा छोटे बनने की कोशिश करते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं, नेल बाइटिंग कर लिया जैसे, या थम सकिंग है, या रोना बहुत बुरी तरीके से. ठीक है, तो हम वो एक चाइल्डहुड फेज में चले जाते हैं टू डील विद इट. देन एक्टिंग आउट, डिसोसिएशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन. प्रोजेक्शन में विल प्रोजेक्ट वॉट एवर वी आर फीलिंग. अगर हमें किसी से जेलसी हो रही है और सामने वाले को हम बोलेंगे अरे जरूर तुझे मुझसे जेलसी हो रही है. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सामने वाले को बोलोगे नहीं, आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है. ठीक है, इट इज लाइक दैट, प्रोजेक्शन वर्क्स लाइक दैट. ठीक है, then we have like repression, displacement, intellectualization, rationalization, undoing, and there are many more: sublimation, suppression, anticipation, affiliation. We are not going to discuss all of them in today's class because we'll have a separate class for this in further units. Okay, जहाँ पे ये topic detail में cover होगा. So it is just an overview कि हम ये सारे defense mechanism पढ़ेंगे, where it actually help us as a coping mechanism. Like हमने displacement की बात करी थी, repression में हम suppress करते हैं, कुछ पुराने childhood traumas हैं, we'll try to suppress them. ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में हम उसको दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है अभी हम उस पर फोकस करते हैं. सपोज समवन हैज एक्सपायर्ड फैमिली में, तो हम क्या करेंगे, अपना सारा ध्यान लगा देंगे कि अच्छा क्या सामान चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, कैसा करना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू एस्केप दैट पेन, वी डोंट वॉन्ट टू एडमिट इट और फेस इट. तो हम अपने आप को एंगेज कर देंगे दूसरी जगह पे, यहाँ से इंटेलेक्चुअली. ठीक है, या रैशनलाइज करेंगे कि अगेन ये तो होना ही था, बीमार था इंसान, होना ही, मतलब इट वाज गुड. इस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं उस चीज को. सब्लिमेशन में हम सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में हम चीजों को करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इफ समवन हैज एग्रेसिव पर्सनालिटी, तो वो कुछ टेक्वांडो क्लासेस ज्वाइन कर लेगा, बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेगा और अपना सारा एग्रेशन वहां निकाल देगा. ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर लेगा, लाइक दैट. एंड देयर आर मेनी मोर व्हिच we'll discuss later. Then we have psychosexual stages of development. So there are certain stages of development which are given by Freud. Before going to
going through those stages, we need to understand certain terms like libido. Libido is psychic energy that powers all our mental activity. It energizes our id. हमारी id को एनर्जी मिलती है लिबिडो से. Release of libido at each stage is closely related to pleasure. तो अकॉर्डिंग टू फ्रोइड हमारी लाइफ की हर स्टेज पे एक सर्टन साइकिक एनर्जी, सर्टन लिबिडो रिलीज होता है. अगर आप उस फेज को अच्छे से क्रॉस करते हो तो सर्टन लिबिडो इज रिलीज जो आपको प्लेजर देता है. ओके. फिक्सेशन, another term here is fixation. Now excessive investment of libido in one particular stage. अब किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में आपने जरूरत से ज्यादा साइकिक एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है, आपका माइंड वहां स्टक हो गया है, उसको हम बोलते हैं फिक्सेशन. और उसकी वजह से लाइफ की लेटर स्टेजेस में आपको सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ओके. बिकॉज जब आप किसी एक स्टेज में ज्यादा एनर्जी डाल दोगे तो आपकी फर्दर स्टेजेस के लिए साइकिक एनर्जी कम पड़ेगी. और साइकिक एनर्जी ही है जो आपकी सारी मेंटल एक्टिविटी को ड्राइव करती है. राइट. सो फिक्सेशन इज नॉट गुड इन एनी ऑफ द स्टेज. These are the 5 main stages: oral stage initially, then anal stage, then phallic stage, then later stage from 6 years onwards, and then genital stage from 11 onwards. Starting with the oral stage, the focus of libido, focus of energy is mouth. Oral stimulation is done. Child seek pleasure by sucking, and child is totally dependent on parents. Conflict, when conflict arise, weaning, the child weans, the child cry a lot, ठीक है, and become less dependent on caretakers. अगर बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिल पाती है, कंफर्ट नहीं मिलता है, तो ग्रेजुअली बच्चे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं और उसकी डिपेंडेंसी कम होने लगती है, उसका ट्रस्ट भी कम होने लगता है. राइट. और फिक्सेशन अगर हो जाए स्टेज में, ज्यादा एनर्जी अगर इन्वेस्ट हो जाए तो ओरल फिक्सेशन हो सकता है. ओरल फिक्सेशन अगर हो जाएगा तो लेटर ऑन पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा. तो देयर कैन बी 2 कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी, एक ओरल रिसेप्टिव, एक ओरल एग्रेसिव. ओरल रिसेप्टिव वो पर्सनालिटी होगी जिनको कहीं कुछ कमी रह गई है, बचपन में वो जो कंफर्ट चाहिए था अप्रोप्रिएट लेवल में वो नहीं उनको मिल पाया है, समथिंग इज मिसिंग. तो दैट इज ओरल रिसेप्टिव पर्सनालिटी. दे रिड्यूस टेंशन बाय ड्रिंकिंग, ईटिंग, बाइटिंग नेल्स, स्मोकिंग. पर्सन बिकम पैसिव, नीडी, सेंसिटिव टू रिजेक्शन. रिजेक्ट होने से बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है. ठीक है. ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटीज आर हॉस्टाइल और वर्बली एब्यूजिव. तो दे यूज abusive languages. Then we have anal stage. Focus of energy is anus. वहां पे बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है, डिफिकेटिंग और रिटेनिंग फीसेस, ब्लेडर कंट्रोल और बाउल मूवमेंट कैसे कंट्रोल करना है ये सीखता है. दैट इज द फेज, एक्टिविटी फेज. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वहां पे बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेनिंग ले रहा है, बॉडीली नीड्स कंट्रोल करना सीख रहा है, एंड देन if child does it successfully, it has a sense of accomplishment and independence. ठीक है. बट अगर यहाँ फिक्सेशन हो जाता है, यहाँ पे अटक जाता है, माइंड फिक्स हो जाता है, तो what can happen? Anal retentive personality can develop and anal expulsive personality can develop. Anal retentive में क्या होगा, जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो गई है जिस बच्चे की, उसको ऑर्डर्ड और टाइडी रहना पसंद है, उसको स्टिंजी रहना पसंद आएगा, वो स्टबबॉर्न बनेगा और परफेक्शनिस्ट भी हो सकता है. एंड लेटर ऑन यहीं से ओसीडी भी डिराइव होता है. ठीक है. बट एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी में क्या होगा, भाई कोई टॉयलेट ट्रेनिंग ढंग से हुई ही नहीं है, सक्सेसफुली वो ये काम कर ही नहीं पाए हैं. ठीक है. सो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हमेशा केयरलेस और मेसी रहेंगे. दैट इज एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी. Then we have the phallic stage. मैम एक्सक्यूज मी मैम, वन क्वेश्चन. अभी लास्ट वाला जो स्टेज है उस पे मैम, इसमें एक बताया आपने कि अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो इट विल रिजल्ट इन एनल रिटेंटिव. हाँ. और अगर नहीं है स्ट्रिक्ट और तो वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव. राइट. और अगर मैम सब सही होता है, हाँ, प्रॉपर, देन इट विल बी बैलेंस. देन
ओके मतलब Okay. तब कोई डिसऑर्डर नहीं होगा ना, उसका साइकोलॉजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा ना। ओके एंड जैसे वो रिटेंटिव पर्सनालिटी है तो ओसीडी के चांसेस है, हाँ, और अगर ये जो एक्सक्लूसिव वाला होता है पर्सनालिटी उसमें एक्सपल्सिव, राइट। एक्सपेंसिव, राइट, तो उसमें कुछ चांसेस है मैम? नहीं नहीं, वो जनरल इट इज अबाउट बीइंग वेरी केयरलेस। होते हैं ना कुछ बच्चे, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, पता है दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू इट, या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। बाजार भेजोगे तो अभी 10 कुछ ना कुछ सामान छोड़कर ही आएंगे। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ओके, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ रहता ही है, हाँ, और अगर कुछ भी नहीं रहता है, दोनों भी बैलेंस रहता है, देन बैलेंस, इट ओके फाइन, या देन इट्स ओके। नॉर्मल। ओके हाँ। ओके मैम, थैंक यू। Then in the phallic stage, focus of energy is on genitals. The child learns the difference between male and females. ठीक है, यहाँ पे बच्चा समझ पाता है मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल हूँ। Conflict at this particular stage results in development of Oedipus complex in boys and Electra complex in girls. Okay, so what happened in this particular stage? A child start to identify with the same gender. Like if there is a girl child, she will identify herself with her mother, and a boy child will identify himself with his father. Okay, what happened, as said by Freud, according to his theory, in this stage boys view their father as their rival, and they want to replace father and possess mother. The boys generally have very strong attachment with their mothers, and they want to replace their father. Okay, and girls on the other hand, they experience penis envy, so as it is said by Freud. Okay, and this is because the boys, okay, they have the feeling of like same gender feeling, they try to associate themselves with their father, but they want to replace them, they want to possess their mother, और father उनको एक rival figure लगते हैं, दुश्मन जैसे। अब ये बात, ये जो उनके मन में चल रहा है, ये उनके फादर को कभी पता ना चल जाए, ठीक है। सो ये जो सिचुएशन, ये जो फीलिंग है, यहां से ये टर्म अराइज हुआ, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, fear of being punished by father for Oedipus complex. So boys have fear of being punished by their father for Oedipus complex. Okay, और फिक्सेशन अगर हो जाता है, वो कहते हैं स्पेशली अगर वो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है तो पेनिस एनवी इज नेवर रिजॉल्व्ड, अगेन एज सेड बाय फ्रॉइड. Then in the latent stage, sexual energy directed towards sports or intellectual activity. यहाँ पे बच्चे स्कूल एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं, इनके डिफरेंट जेंडर फ्रेंड्स भी नहीं सॉरी इनकी सेम सेक्स फ्रेंड ज्यादा होते हैं, लाइक लड़कियां लड़कियों के साथ ज्यादा घूमती हैं, लड़के लड़कों के साथ ज्यादा घूमते हैं और बात करते हैं. इट इज टाइम फॉर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीरियड ऑफ काम, स्कूल टाइम. फिक्सेशन अगर इस स्टेज में हो जाता है तो बच्चों में बड़े होकर भी थोड़ा इमेच्योरिटी रहती है if they fix at this particular stage. Then again we मैम have, इसमें किस टाइप का फिक्सेशन रहेगा? हाँ, इसमें जैसे आपने बोला ना, इसमें फिक्सेशन अगर आ जाती है तो इमेच्योरिटी रहती है, तो किस टाइप की फिक्सेशन आती है मैम? फिक्सेशन यही हो गई कि आपका इट कैन बी टू थिंग्स. एक तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है इन्हीं चीजों से, जो स्कूल टाइम है ना, आपका स्कूल टाइम है, बच्चों के साथ बात करना, खेलना कूदना, तो देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन who are too attached with this phase of life, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं बड़े होके भी. ओके 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 ओके, राइट, काइंड ऑफ स्पून फीडिंग बोलेंगे मैम? काइंड ऑफ, यस यू कैन से सो. बहुत ज्यादा, मतलब इसमें क्या होगा ना, फिर दे वांट टू बी लाइक दिस ओनली. मतलब देखो, आपने देखा भी होगा कॉलेज के बाद कई बच्चे होते हैं, कॉलेज से निकल तो जाते हैं, बट आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन ऑल्सो दे आर लाइक वेरी चिल टाइप्स in the sense कि they don't want to take any responsibility, they just want to roam around with their friends
एंड डिपेंडेंट डू रहते हैं, नथिंग. हाँ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट डिपेंडेंट। ओके। रहेंगे. दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एक्चुअली. एटीट्यूड में ही गड़बड़ है. हम्म। ओके मैम, तो है ये ना? लेटेंट स्टेज में होता है। हाँ. अगर वहां पे फिक्सेशन हो जाए तो बाद में लेटर ऑन उसका इम्पैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. हम्म। है ना? ओके अगर मैडम। यहाँ पे और ये ज्यादा. सेम सेक्स फ्रेंड्स जो बोला है, लास्ट वाला पॉइंट, राइट. तो ये वाली चीज भी यहीं पे डेवलप होती है। हाँ, क्योंकि जनरली होता नहीं है स्कूल फेज में नए नए. हम्म जैसे बच्चे अभी होते हैं 5th 6th हम्म स्टैंडर्ड हम्म में आते हैं, तो ग्रेजुअली क्या हम्म होता है, फिर वो लड़कियां लड़कियों के साथ ही उठती बैठती हैं, लड़के लड़कों के साथ ही रहते हैं. ऐसा नहीं होता स्कूल में. हम्म। मैम एक मैंने ये देखी थी, मूवी थी या सीरीज थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसमें बताया था कि ये दोनों बच्चियां लाइक स्कूल एज की बच्चियां हैं, एंड दे वर ब्रॉट अप इन ऑर्फनेज. ओके. ऑर्फनेज में था इनका, एंड वहां पे दे डेवलप्ड द ये लेस लेस्बियन वाला चीज ओके. उनमें डेवलप हो गया. फिर धीरे धीरे करके दे वर आउट ऑफ द स्कूल, और जो ऑर्गेनाइजेशन में थे वहां से उनको बाहर निकाला गया, बिकॉज इट वाज नॉट प्रैक्टिस देयर. देन उसके बाद में धीरे धीरे करके वो चीज बढ़ती गई. एंड मतलब वही कहने का मतलब, पूछने का क्वेश्चन यही है कि यही बात है ना जो यहाँ पे इट. बोल रहे हाँ, लेटर हैं. मतलब ये व्हाट यू आर सेइंग ना, दैट इज वन ऑफ द इम्पैक्ट व्हिच मे हैपन. अगर यहाँ पे ओके. फिक्सेशन हो गया हम्म. है ना, तो जो आपने एग्जांपल दिया, इट इज जस्ट लाइक कि वो सेम सेक्स फ्रेंड में फिक्स हो गए हैं. है ना? और लेटर ओके ऑन वो ओके. उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो बिकॉज मैम, ये बोलिए. बिकॉज बिकॉज यहाँ पर, बिकॉज ये जो अभी आपने डिस्कस किया लेस्बियन वाला इशू है या सेम सेक्स इश्यूज जो आते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज बायोलॉजिकल, इट इज एट टाइम साइकोलॉजिकल ऑल्सो. हाँ, दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, यस. कि ये जो चीजें हैं लाइक हाँ. बहुत बार आजकल हम कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं. हाँ. नहीं तो पहले भी होता, पहले भी थे, ऐसा तो कंडीशन आया नहीं था. अभी तो हम इट हर इज हाँ. actually what happened recently in that hypnotherapy conference. ठीक है, वहां पे I remember there was one professor or doctor, I guess he was a hypnotherapist. और वो हिप्नोथेरेपिस्ट वो इसी चीज के लिए थे, LGBTQ ये वाला जो एलजीबीटी. कम्युनिटी. हाँ. यस, इसी कम्युनिटी के वो हिप्नोथेरेपिस्ट थे बेसिकली. ओके. एंड ही वाज शेयरिंग अ केस स्टडी वेयर ही वाज लाइक देयर वाज अ पर्सन, बॉय था, ठीक है, एंड उनकी शादी की एज थी. और वो हमेशा से बॉयज हॉस्टल में थे, मतलब उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करी थी और इट वाज अ बॉयज स्कूल. ठीक है. सो उनको वो मौका ही नहीं मिला कभी कि वो डिफरेंट जेंडर के साथ रहने वाला फीलिंग क्या होता है, या ही हैज इवन दैट फियर ऑफ फेसिंग अ फीमेल. कैसे अप्रोच करना है, क्या बोलना है, एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, पता है रिजेक्ट ही होना है, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं बना ना. जैसे यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस का भी फेज था, बट उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बना. ठीक है. सो दैट डॉक्टर वाज टेलिंग कि भाई वो आते हैं उसके पेरेंट्स और हमें बताते हैं केस. तो डॉक्टर हैड फ्यू सेशंस विद हिम. ठीक है, फ्यू हिप्नोथेरेपी सेशंस विद हिम, और थोड़े ही सेशन में ही शोड रिमार्क्ड इम्प्रूवमेंट उसके, क्योंकि ओके. उसके मन में सिर्फ डर ही डर था. एंड डॉक्टर मेड हिम प्रिपेयर थ्रू हिप्नोथेरेपी कि भाई गो एंड टॉक टू अ फीमेल फ्रेंड और समवन. तो वहां जा गए, बात बन गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको अच्छा लगा, बेटर फील हुआ जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था. एंड नाउ ही इज हैप्पीली मैरिड विद अ किड. मीन्स मैम, अभी एक और चीज है, लाइक ये साइकोलॉजिकल है. ठीक है, जो लोग साइकोलॉजिकली क्या बोलेंगे इसको, टर्न अप हो जाते हैं इनटू सेम सेक्स वाले इसमें, बट उनकी बायोलॉजी में कोई डिफेक्ट नहीं रहता है. राइट. जैसे अभी हिप्नोथेरेपी से उन्होंने सब ठीक कर दिया उस पर्सन पे, राइट. बट आगे जाकर के हैप्पीली मैरिड विद किड्स, अभी आप ही ने बताया, राइट. राइट मैम. तो और जो ऑलरेडी रहते हैं उसी इसमें कि उनको कोई भी ना थेरेपी लग रही है ना कुछ, दे आर, वो है ही इनबॉर्न है उनके अंदर, तो उनमें बायोलॉजिकल भी वो चीजें रह जाती है मैम, मतलब हाँ, हो सकता है, डेवलप नहीं होती डेफिनेटली है. हो सकता है, हो सकता है. देयर आर चांसेस.
हाँ, क्योंकि मैम अभी जो केरला का रिसेंट केस हुआ था, दैट द ट्रांसजेंडर वर प्रेग्नेंट, ओके, तो आपने सुना होगा शायद। हाँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, प्लीज ओके टेल मी। ओके, तो उसमें क्या हुआ था मैम, दोनों भी ट्रांसजेंडर थे और उन्होंने कन्वर्ट कराया था, मेल ने फीमेल में कन्वर्ट ओके। कराया था और फीमेल ने मेल में कन्वर्ट कराया था। हम्म और जब वो कन्वर्सेशन, वो जो प्रोसेस चल रहा था, तो जो फीमेल थी जिसने मेल में किया अपने आप को कन्वर्ट, उसने अपना जो बायोलॉजिकल होता है कंसीव करने वाला, उसको होल्ड पे रख दिया था। वो हम्म इसीलिए रखा था बिकॉज दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट। हम्म तो जैसे ही वो हो तो गए थे, बाकी सब चीजों में हो गए थे, ब्रेस्ट एंड ऑल वाज गॉन फीमेल केस में, हम्म बट वो जो बिकॉज ऑफ विच अ वुमेन इज गेटिंग प्रेग्नेंट, वो वाला सिस्टम उन्होंने चेंज नहीं किया, ऑर्गन चेंज नहीं करवाया। हम्म अभी वो साथ में रहे, द पर्सन गॉट प्रेग्नेंट, तो अभी वही बताया उन्होंने कि ट्रांसजेंडर ने उस चीज को प्रिजर्व करके रखा था। नाउ दे आर प्रेग्नेंट। अब उस बच्चे का जेंडर डिस्क्लोज नहीं हुआ है अभी तक के, बट हो चुका है बेबी, हम्म ऐसा। इट वाज इन सोशल ओके मीडिया रिसेंट 1 मंथ ओके ओके। तो बैक। ये हाँ तो हाँ। लेकिन बट बहुत आर्टिफिशियली हो गया ना, आई मीन हम्म, नेचुरली देयर बॉडी वाज नॉट लाइक दैट, राइट राइट, है ना? ये तो उन्होंने they were कन्वर्ट straight, किया। biologically हम्म they were totally straight, it that हम्म means ना, हम्म। तो right? मैम ये भी इसको भी साइकोलॉजिकली बोलेंगे कि इन लोगों हाँ, के इसमें दिमाग तो में। एग्जैक्टली हम्म exactly, क्योंकि ये हम्म तो बिल्कुल हेंस प्रूव्ड वाली बात हो गई ना, बायोलॉजिकली दे वर लाइक वेरी स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड ओके थे, फिट थे। स्ट्रेट एंड ओके, है ना, कोई हम्म इशू ही हम्म नहीं था। हम्म एक होता है कि हम्म बायोलॉजिकली कंफ्यूज्ड बॉडी है, अभी पता ही नहीं हम्म। है, बायोलॉजिकली इश्यूज हैं, है ना? अभी जैसे तो मैम आपने हिप्नोथेरेपिस्ट वाले का हम्म एग्जाम्पल बताया, थेरेपी हम्म का, अगर वो नहीं चेंज होता तो सेम चीजें हो जाती ना यहाँ पे भी। हम्म, हाँ पॉसिबल लाइक था, हाँ पॉसिबल था। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, ठीक है, गुड, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। देन वी हैव लास्ट जेनाइटल स्टेज, अगेन यहाँ पे आ जाता है अपोजिट सेक्स इंटरेस्ट, पुरानी डिपेंडेंसीज चली जाती हैं, दे डील थिंग्स मेच्योरली, दे डू लीड अ वेल बैलेंस लाइफ, दे बिकम वार्म एंड केयरिंग, and conflict arises when there are certain like social foundations, ठीक है, सोशल रूल फॉलो करने हैं नहीं करने हैं, वहां पर इशू कभी आता है। Then Freud also gave another concept of Freudian slips. According to him, अगेन जैसे कि हमने अनकॉन्शियस माइंड की बात करी थी, एवरी थॉट, एवरी सिंगल थॉट इज देयर अनकॉन्शियसली, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हैं, बट कभी कभी हमारी जबान पे हम कहते हैं ना, चीजें आ जाती हैं, अरे ये गलती से निकल गया मुंह से, बट अगेन वही है, गलती से कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्रूइड इट इज ऑलवेज देयर, कुछ अंदर होगा तभी वो हमारे जबान पर कोई चीज आई है, ठीक है? That is another concept here. So these were the psychosexual stages: oral, anal, phallic, latency and genital. ये age group हुआ इनका. Focus of libido, I guess we have studied. Major development, weaning off, then ये toilet training, Oedipus इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होते हैं ज्यादातर, और यहाँ पे फुल सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है। फिक्सेशन में स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ऑर्डरलीनेस, मेसीनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, और नन, यहाँ पे फिक्सेशन का इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है ज्यादा। इट if all stages were successfully completed, then person should be sexually matured and mentally healthy. ठीक है, so this is the concept of psychosexual stages. अगेन दिस इज सिमिलर, फिक्सेशन और एडल्ट पर्सनालिटी, अगर ओरल में फिक्सेशन होता है तो ओरल एक्टिविटीज होंगी, एनल में अगर फिक्सेशन हो जाता है तो उसके हिसाब से वी हैव स्टडीड दिस पार्ट आल्सो, एंड फैलिक में अगर हो रहा है तो अबनॉर्मल फैमिली सेटअप लीडिंग टू अनयूजुअल रिलेशनशिप विद फादर और मदर, तो फादर और मदर के साथ वो जो इश्यूज रह जाते हैं लॉन्ग लेटर ऑन भी, वो इस स्टेज में होता है, ठीक है? पर्सनालिटी में सेल्फ ऑब्सेशन, सेक्सुअल एंजाइटी हो सकती है, इनएडुकेसी, इंफीरियोरिटी एंड एनवी हो सकता है।
this in the initial stage, oral anal stages में ego develop होता है, and later on from phallic especially यहाँ पे super ego develop होना शुरू होता है, where we like learn the rules कि ये सही है ये गलत है. Okay. Okay, so any doubts still here? So let's start with another school, that is Gestalt psychology. This was given by 3 German psychologists, which include Max Wertheimer, Kurt Kofka, and Wolfgang Kohler. Okay, these were the 3. Now Gestalt, the word Gestalt, I guess you all know, it means to the whole. Okay, pura picture, complete picture, holistic view. That is whole, that is Gestalt. Okay, so it deals with the fact that although a sensory experience can be broken down into individual parts, however, these parts relate to each other as a whole is often what individual responds to it in perception. मतलब भले ही हम छोटी छोटी चीजें परसीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सीइंग अ ट्री. अब ट्री में आपको क्या दिख रहा है? आपको एक पत्ता भी दिख रहा है, आपको फूल भी दिख रहा है, आपको उसका तना भी दिख रहा है, आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है, आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, आपको उसमें बैठी हुई चिड़िया भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है. बट ये छोटी छोटी चीजें जो आपके माइंड में एंटर कर रही हैं, वो आपके माइंड को एक विजुअल पिक्चर दे रही हैं दैट यू आर सीइंग अ ट्री. ओवरऑल दिस इज अ ट्री यू आर सीइंग. ओके, which all the little bit components they combine together and give you a perception of a overall. Okay, that is Gestalt. This particular perspective would have directly contradicted Wundt's idea of structuralism. तो structuralism से ये थोड़ा सा against चला जाता है. Why? Because structuralism में Wundt ने एक एक छोटे छोटे पार्ट पे फोकस किया था, और यहाँ पे हम उन पार्ट्स की जगह हम पूरी पिक्चर पे फोकस कर रहे हैं. The rise of behaviorism in US prevented principles of Gestalt psychology from being influential. ठीक है, जर्मनी में तो ये आए, बट यूएस में नहीं जा पाए क्योंकि यूएस में बिहेवियरिज्म चल रहा था. ओके, बट स्टिल principles of Gestalt are very influential. Considering human individual as a whole rather than as a sum of individually measured part became important foundation in humanistic theory as well. So this is very famous, sum of parts, है ना. तो और एक होता है आपका सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, और एक है होल, है ना, होल पिक्चर जो होती है. या सो दिस इज ग्रेटर देन सम ऑफ इस इंडिविजुअल पार्ट, है ना. अगर आप सिंपली दो चीजों को जोड़ दोगे, 1 + 1 + 1 = 2 तो कर दोगे, बट हो सकता है जब हम होल पिक्चर देख रहे हैं तो वो = 3 निकल के आ रहा हो. ओके, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट हाइपोथेटिकली. तो सम द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स. एंड लेटर ऑन इसी कॉन्सेप्ट को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में भी फॉलो किया गया, जहां पे इस थ्योरी को पर्सन एज अ पर्सन, एक पर्सन में अप्लाई, ह्यूमन में अप्लाई किया गया, हमारी पर्सनैलिटी में अप्लाई किया गया. ओके, हो सकता है एज अ पर्सन आपके अंदर कोई एक ट्रेट हो, कोई दूसरा ना हो, आप किसी एक चीज में अच्छे हो, दूसरे में अच्छे नहीं हो, बट ओवरऑल हम कैसे जज करते हैं? ओवरऑल हम किसी एक ट्रेट से नहीं जज कर सकते किसी को. वी हैव टू सी अ पर्सन एज अ होल, and overall every human being is good. Overall, a holistic view, as a holistic view, every individual has some good potential. Okay, and ये जो Gestalt का काम था, it influences research on sensation and perception further. Again, this is an example. You can see this invisible triangle here. It is invisible, still we all can see it. Why? Because of this Gestalt. Okay, because of Gestalt perception we can see this triangle. Again, this image, in this image, to some people it may look like a duck, or to some people it may look like a rabbit. आपको क्या दिख रहा है, duck या rabbit? हम duck. Duck. अगर आप इसको इस व्यू से देख रहे हो कि ये
बीक है और ये डक है, तो ये डक दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स व्यू करके देखो तो आपको लगेगा ये रैबिट का माउथ है, और ये Oh, रैबिट yes, ma'am. और ये Ma'am, रैबिट है ना। that beak has become ears. ईयर्स, ये राइट, Ears ये of रैबिट the के ईयर्स rabbit. बन गए फिर, Yes, ma'am. है ना। दो डिफरेंट इमेज दिख रही है, कभी रैबिट तो कभी डक। ओके, सो द सेंसरी इंफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम बट योर परसेप्शन कैन वेरी ड्रामेटिकली। तो कोई एक चीज हो सकती है और उसके परसेप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। Similar, then again this is one of example. These are parts, ठीक है, हम parts की बात कर रहे हैं। Gestalt is more than its parts, तो these are just parts, छोटे छोटे parts हैं, इनको रख दिया एक साथ, and they are not making any sense, but यही parts को इस picture में align कर दिया है properly. This is the part here, इसको यहाँ लगा दिया है, ये वाले जो parts थे इनको eyes बना दिया है, इसको nose बना दिया है, इसको ear बना दिया है। देख सकते हो, यही पार्ट्स हैं, सिर्फ इनको रीऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रख दिया है, तो इट इज मेकिंग सेंस, इट इज गिविंग अ लुक ऑफ अ पैंडा हेयर, एंड आवर माइंड इज बीइंग एबल टू फिल दिस गैप। ये जो गैप एरियाज हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इसको फिल कर पा रहा है। क्लियर है, ये समझ आ रहा है ना, हाउ इज इट वर्किंग? मैम इसको कनेक्ट करके एक पैंडा का पिक्चर आया है ना। हाँ, आई गेस ये देखो ना, अगर मैं ये लाइन नहीं भी ड्रॉ करती तो भी तो इट इज लुकिंग लाइक अ पैंडा ना। यस मैम। ये देखो मैं लाइन हटा दी है, स्टिल इट इज लुकिंग लाइक अ पैंडा, because our mind is able to fill that gap na. Yes ma'am. So it is about all about perception and it is all about gestalt, यानी कि picture of whole, as a whole हमें क्या समझ में आ रहा है। individually ये parts they were not making any sense to us, है ना। Yes ma'am. मैम जब इन पार्ट्स को we collected then a full picture was there of panda. Right, ठीक है। Then we have several gestalt principles like proximity. Proximity में क्या होता है, things which are closer to each other we join them, we group them, ठीक है। जो पास पास रखा होता है we group them, कि ये पास में है, ये पास में है, so we group them। अब हम उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड में जितनी भी छोटे छोटे शहर हैं, अब चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, वो प्रॉक्सिमिटी की वजह से विल ग्रुप देम, और उनको हम अलग रखेंगे बाकी स्टेट्स को, दिल्ली को, नोएडा को, मेरठ को हम अलग रखेंगे उनसे, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी इशू की वजह से, बिकॉज दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में क्या होता है, जो सिमिलर चीजें होती हैं हम उनको ग्रुप करते हैं, राइट। सपोज देयर इज अ रूम जहां पे 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, out of those 5 3 students are of psychology and 2 students are from other background, so automatically if someone asks to group them, okay, so we'll create a group of these 3 और उन दो को शायद हम अलग ग्रुप में डाल दें। why? because they share certain kind of similarity, ठीक है। then we have enclosure. Enclosure is I guess this is similar to सिंपलिसिटी वाला जो लॉ रहता है, or we can say pregnance, I guess the word is सही। तो लॉ ऑफ सिंपलिसिटी भी होता है जहां पर अ सिंपल फिगर इज परसीव्ड और हम उसको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो वी कैन परसीव अ सिंपल फिगर आउट ऑफ दीज डॉट्स, सो वी कैन फॉलो दिस लॉ एज वेल। कनेक्शन में कनेक्टेड, जो कनेक्टेड चीजें होती हैं वी प्लेस देम टुगेदर, ठीक है। those things which have which seems to have certain connection with each other,
कॉमन फेट में क्या होता है, सेम डेस्टिनेशन, जैसे बर्ड्स देखते हो आप, इवनिंग स्काई में जब बर्ड एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाती है, it is the example of common fate because they have common destination to go. Closure में क्या हो रहा है, our mind is being able to fill these gaps. This is closure. Close करके हम एक पिक्चर बना सकते हैं यहाँ पे automatically without efforts. Figure and ground. Again figure and ground में क्या होता है, इसमें ना एक बैकग्राउंड होता है और एक फ्रंट होता है. अगर हम बैकग्राउंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें तो हमें एक पिक्चर नजर आएगी, और अगर हम बैकग्राउंड की जगह किसी और चीज को, उसके फ्रंट को इंपॉर्टेंस दे तो आपको कोई और पिक्चर नजर आएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा अगर आप देखो इन दिस फिगर, ठीक है, नाउ फोकस ऑन दिस बैकग्राउंड. अगर आप इस ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे फोकस करो तो आपको क्या नजर आ रहा है, मैम एक वास बना हुआ है, एक वास नजर आ रहा है. ठीक है, नाउ जस्ट फोकस ऑन द वाइट बैकग्राउंड, नॉट ऑन दिस. मैम नाउ इट सीम्स लाइक टू फेसेस, है ना, अब आपको टू फेसेस कैन बी सीन, राइट. तो दिस इज फिगर एंड ग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड की वजह से. ठीक है, आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो उससे ही कुछ और परसीव करने लगोगे. Ma'am, it is like ki on whichever point we focus, it becomes the main part and the rest becomes the background. Yes, it is like that. Yes, ma'am. Then we have symmetry. Symmetry is again simple. अगर like human body is also symmetrical in nature, है ना. एक फिगर है something like this, तो इसमें law of symmetry follow हो जाएगा. ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं but symmetrical है. ठीक है, तो हम उनको एक साथ रख सकते हैं. Then we have continuity also. Continuity में क्या होता है कि you feel that certain figure is continuing. ये law of continuity है जो हमें feeling दे रहा है that it has some continuation, इसलिए हम उसको एक कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है, that is law of continuity. में हो सकता है हम इस टॉपिक को भी परसेप्शन में दोबारा एक बार डिस्कस करें इन डिटेल. So these are certain Gestalt principles. Then we have behaviorism, school of behaviorism, given like behaviorism, the father of behaviorism is Watson. He believed that objective analysis of mind was impossible, so he preferred to focus on the observable behavior and try to bring that behavior under control. तो again concept वही था behaviorism का. उन्हें लगा कि हम कुछ और तो देख नहीं सकते हैं, कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो हम बिहेवियर पे फोकस करते हैं. Okay, so he shifted the psychology, main focus of psychology, from mind to behavior. So there was a famous experiment, Little Albert experiment. याद है किसी को? Yes, ma'am. What happened in that experiment? मैम उसमें ना उसको एक व्हाइट कलर का कुछ आई थिंक टेडी था, जिसमें उसको डर नहीं लगता था उस टेडी से, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब भी वो टेडी लेके आते थे तो उसके पीछे बहुत लाउड नॉइस करते थे वो. और फिर ऐसे ही उसका कंडीशन हो गया कि जैसे ही वो व्हाइट टेडी आता था बहुत लाउड नॉइस होती थी और ही यूज्ड टू क्राई. उसमें एक फियर डेवलप कर दिया था उससे. Right. तो फिर उसने क्या किया कि सेंटा क्लॉज था या कोई भी व्हाइट हेरी फेरी चीजें होती थी, उसका फियर डेवलप हो गया था उससे और वो डरने लग गया था उन सब. हाँ, वो सब चीजों से डरने लग गया था. कुछ भी व्हाइट दिखाओ वो डर जाता था. ठीक है, तो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट की जिससे पता चला अरे कंडीशनिंग हो गई बच्चे की, राइट. और फिर लेटर ऑन ये थोड़ा एथिकली भी वो माना गया था, तो आई गेस उन्होंने उसको डीकंडीशन भी किया था उस बच्चे को बाद में. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जहां पे कंडीशनिंग का रोल आया था, जो कि पता भी नहीं था इन्हें कंडीशनिंग होता है उस वक्त, बट स्टिल दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. लेटर ऑन देन sorry, Pavlov came. He was a Russian psychologist and यहाँ पे उन्होंने पहली बार क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी थी. ओके, सो व्हाट ही लर्न,
he again conducted an experiment with a dog. He gave food to a dog. Food is natural stimulus, and natural salivation is a natural response. ठीक है, जो कि naturally आ रहा है. So this is unconditioned response and unconditioned stimulus. Then what happened? There was a whistle or a sound is created or a bell was rang. ठीक है, कुछ घंटी दी, बेल की साउंड दिया, विसल दिया. इनिशियली अगर सिर्फ विसल बजाते हैं तो there is no salivation, there is no response. But whenever Pavlov was giving food to the dog, he was combining the whistle along with the food. खाने के साथ साथ घंटी, खाने के साथ साथ घंटी. What happened? Initially, salivation was unconditioned. Initially, but after number of pairing, बार बार pairing कर दी, तो क्या हुआ? थोड़े टाइम के बाद, whenever the sound of whistle was there, it was given, the dog started salivation. This is conditioned response and this is conditioned stimulus. Okay, the dog started salivation. So this was an example of classical conditioning. Is it clear till here? Yes, ma'am. Behaviorism dominated experimental psychology for many decades. It is largely responsible for establishing psychology as a scientific discipline through experimentation. And it is used in behavioral and CBT, cognitive behavioral therapy, and school settings में भी behavior modification के लिए इसे use किया जाने लगा. जैसे कि हम reinforcement में पढ़ते हैं, जो कि स्किनर ने दिया था. ठीक है, Skinner was an American psychologist and he gave the concept of operant conditioning. So he developed a chamber where he studied these principles, जिसको हम Skinner box बोलते हैं, Skinner chamber. This was the Skinner box. You can see here, this is a box. These are electric rods. This is this dispenser from which food is given. This is a lever. These are lights and this is speaker. All these things are there in a Skinner box. So that box isolates subject. Subject is the mouse, which from the external environment and has a behavior indicator such as lever or a button. होता क्या था? Whenever this mouse pushes the button, जैसे ही वो lever press करता था, उसको खाना मिलता था यहाँ पे. ठीक है, food मिलता था. या फिर सेकेंडली, या फिर उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट. पनिशमेंट किस फॉर्म में मिलेगी? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉइस. स्पीकर से नॉइस आता था, ठीक है, एज अ पनिशमेंट. और अ टोकन कंडीशनर, साथ में कोई कंडीशनिंग भी हो सकती थी. कंडीशनिंग के लिए ये लाइट थी यहाँ पे. ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड with either the positive reinforcement or punishment. तो वो लाइट एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसको या तो वो पनिशमेंट के साथ लिंक कर सकते थे या फिर फूड के साथ, यानी कि रीइंफोर्समेंट के साथ. ठीक है, सो ही गेव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव reinforcement of learned behavior. Now again, I guess concept you all must be knowing. Reinforcement में क्या होता है? उसको जब उसको लेवर पुश करता है और खाना मिलता है, तो उससे क्या होगा? उसका लेवर पुश करने का बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन अगर उसको लेवर पुश करने पे साउंड मिलता है, नॉइस मिलता है जो कि उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसका जो लेवर पुश करने का एक्शन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. इट विल एक्ट एज अ पनिशमेंट उसके लिए. ठीक है, उसको जो नॉइस है वो पनिशमेंट की तरह एक्ट करेगा, तो उसका लिवर वाला बिहेवियर कम हो जाएगा. फूड उसके लिए रीइंफोर्समेंट की तरह बिहेव करेगा, रिवॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, तो उसका लिवर पुशिंग का बिहेवियर बढ़ जाता है. सो दिस वाज द वे जिससे स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था. ऑपरेंट, द वर्ड ऑपरेंट इटसेल्फ मींस ऑपरेटिंग ऑन द एनवायरनमेंट. तो माउस जो भी एक्शन कर रहा था वो एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट उसे दिया गया था उसमें कर रहा था. ठीक है, इट इज अबाउट ऑपरेटिंग इन द एनवायरनमेंट और वहां से कंडीशनिंग होना. देन रीइंफोर्समेंट थ्योरी के हिसाब से वी हैव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल.
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है तब बिहेवियर हम एनहांस कर रहे हैं, किसी के बिहेवियर को एनहांस करने के लिए रीइंफोर्समेंट देते हैं हम, ठीक है। जब भी बिहेवियर हम डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो वहां पनिशमेंट है, ठीक है। जब हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो हम किसी बिहेवियर को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर। सेकेंडली, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। जब पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है, एट दैट मीन्स यू आर एडिंग समथिंग टू द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फूड दे रहे थे हम पीछे माउस को, जब हम खाना दे रहे हैं यानी कि उसके एनवायरमेंट में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, राइट। जब हम उसको नॉइस दे रहे थे तो हम उसके एनवायरमेंट में कुछ ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो दैट वाज पॉजिटिव पनिशमेंट। जब फूड दे रहे थे तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, वी रिमूव समथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। अब रिमूव करते हैं जब हम, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, पिछले ही एग्जाम्पल, स्किनर बॉक्स के अंदर वो जो माउस था, जो चूहा था, उसके नीचे जो ग्रिड थी, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है उसको, ठीक है, हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ से शॉक मिल रहा है उसको, और जब भी वो लिवर पुश करेगा ये शॉक बंद हो जाएगा, ठीक है। शॉक मिल रहा है, लिवर पुश करने से ये शॉक बंद हो सकता है। इसका मतलब लिवर पुशिंग का बिहेवियर बढ़ेगा कि घटेगा? अगर वो लिवर प्रेस करेगा तो शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, लिवर पुश वो अगली बार करेगा कि नहीं करेगा? रीइंफोर्स हो रहा है बिहेवियर? हाँ, लिवर पुश करेगा मैम, करेगा ना, रीइंफोर्स हो रहा है उसका बिहेवियर, राइट? यस मैम, यस मैम। लेकिन ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम कुछ रिमूव कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, हम इलेक्ट्रिक करंट को हटा रहे थे वहां से। मैम ये नेगेटिव हुआ क्योंकि here we are eliminating that element which is disturbing us. Yes, which is yes, disturbing yes, the yes, mouse basically. yes. We are eliminating that thing which is disturbing to the mouse. We are reinforcing a behavior by giving negative reinforcement. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. In negative reinforcement, we eliminate the thing that disturbs the हाँ, client or person. अब बच्चे को होमवर्क कराना है, होमवर्क करना है बच्चे ने, ठीक है, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको किसी ने रूम में बंद कर दिया, बच्चे को रूम में बंद कर दिया किसी ने, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, होमवर्क कर लेना, हम आपको रूम से बाहर निकाल देते हैं और होमवर्क कर लो, इस टाइप का कुछ। तो क्या होगा, हमने रूम खोला, रूम से बाहर निकाला और बच्चा बैठ गया होमवर्क करने, ऑटोमेटिकली वो रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। अगर हम कुछ नेगेटिव चीज उससे हटाते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए रीइंफोर्सिंग बिहेवियर की तरह बिहेव करता है, जो डिस्टर्बिंग होता है अगर उसको हम रिमूव करते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा, यहां पर भी हम कुछ रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, घर पे लेट आए हैं रात को, ठीक है, अब पनिशमेंट के लिए हमें ना डांट पड़ रही है ना मार पड़ रही है, कुछ नहीं। अगर डांट पड़ती या मार पड़ती तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होती वो। लेकिन क्या किया पेरेंट्स ने कहा कि पॉकेट मनी बंद कर देता हूं। ना वो डांट रहे हैं ना वो मार रहे हैं, वो नेगेटिव पनिशमेंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम योर एनवायरमेंट विच इज प्लीजिंग टू यू। इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। मैम इसमें जो नेगेटिव पनिशमेंट है ना, इसमें जो हमें चीज पसंद होती है वो हम ले लेते हैं, मतलब जो दूसरे इंसान को कुछ पसंद है हम वो ले लेते हैं उनसे। जैसे पॉकेट मनी एक पॉजिटिव चीज थी हमारे लिए, हाँ हाँ, राइट, तो वो डिलीट कर दी गई टू एनहांस आवर बिहेवियर। राइट, एनहांस नहीं, पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज करना है, to decrease the behavior that we do not, unwanted behavior, to decrease the टू unwanted डिक्रीज द अनवांटेड बिहेवियर। रात को लेट पे घर आए, वो बिहेवियर हमें हटाना था, डिक्रीज करना था,
इसलिए पनिशमेंट दी, पनिशमेंट लेकिन कैसी दी, नेगेटिव दी, पॉकेट मनी बंद कर दी या आपका फोन लेके रख लिया आपसे। यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये सबको कॉन्सेप्ट? देन वी हैव ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर ने दिया था। दे बिलीव इन इनेट गुडनेस ऑफ एवरी बीइंग, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, दे ऑल हैव पोटेंशियल टू ग्रो, टू reach the stage of self actualization. They give this theory of, or hierarchy of needs, you can say. Everyone passes through these needs. The basic is physiological needs like requirement of your body, food, water, shelter, warmth. Then we have security needs like safety, employment, assets, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारी चीजें. So these are the basic needs. ठीक है, deficiency needs जिसको हम बोलते हैं, D needs. Then we have social needs, to have family, friends, intimacy, belongingness. Then we have esteem needs like feeling of self-worth, accomplishment, confidence. And then we have self-actualization needs, that is inner fulfillment, to reach that highest stage of our potential. So these all are being needs. इनको हम B needs भी बोलते हैं, growth needs भी बोलते हैं. Okay, now according to them, according to Maslow, although they are in order, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक के बाद दूसरे पे जाओगे, दूसरे के बाद तीसरे पे जाओगे. मतलब इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, ऑल्दो इट इज इन ऑर्डर, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन सोसाइटी. हो सकता है कोई किसी एक नीड को स्किप करके डायरेक्टली किसी और नीड पे शिफ्ट हो जाए, एंड लेटर ऑन ऑल्सो वो किसी और नीड से शिफ्ट होके, डिग्रेड होके किसी और नीड पे आ जाए. ठीक है, इट कीप्स इंटरचेंजिंग. बट जनरली बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, इट यूज टू से कि when one fulfill one basic need, then the person shift to another level of need. ठीक है, so that was the original concept, but later on it was realized that these stages are not very rigid in one's life. So these are the stages again. Human beings are motivated by these needs. Needs are organized in hierarchy. Order of needs is not rigid, but may be flexible depending on individual differences. Most behavior is multi-motivated. जरूरी नहीं है हम एक ही motive से हमारा behavior चल रहा है. We can have multi-motivations in our life. Then we have Carl Rogers, who gave the concept of congruence. ठीक है, उन्होंने ही हमें client centered therapy दी थी. Client centered therapy, which includes 3 main features: unconditional positive regard, genuineness and empathy. Unconditional positive regard, you know, unconditional love देना. ठीक है, conditions apply नहीं करना, आप जो हो जैसे हो वैसे आपको पसंद करना. ओके, अगर कंडीशंस लग जाती हैं तो वहां पे कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, क्लास में फर्स्ट आओगे तो ही हम आपको बाहर लेके जाएंगे, तो ही हम आपसे बात करेंगे, राइट? दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशनिंग. ओके, बट अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, किसी भी ह्यूमन बीइंग की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जरूरी है आप उसको जो है, जैसा है, एज इट इज है, उसको जानो और समझो. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दो. जेन्युइननेस, जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट के पार्ट पे जेन्युइननेस होनी चाहिए. वो इंटरेस्टेड होना चाहिए अपने काम में, अपने क्लाइंट में, और ऑनेस्टी होनी चाहिए उसकी बातों में. ठीक है, और प्लस उसकी पर्सनालिटी में. ऐसा नहीं है वो अंदर से खुद कुछ और है, कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है. ठीक है, तो जितनी जेन्युइननेस, जितनी कॉन्ग्रुएंस थेरेपिस्ट की पर्सनालिटी में होगी, उतना ही ज्यादा वो क्लाइंट को मदद कर पाएगा. And then empathy. Empathy, I guess you all know, trying to like understand other situation from their perspective. दूसरों के शूज में अपने पैर डाल के देख पाना, दूसरों की परेशानी को महसूस करना, फील कर पाना. So empathy is also required. Again, this is the same thing. Need for self-actualization is one of the basic need,
and also a human has need for positive regard. Okay, so Carl Roger had talked about when we give unconditional positive regard, the person can actually lead towards the end stage of self actualization. But when conditional positive regard is given, जब बच्चे के ऊपर conditions लगाई जाती हैं किसी के भी ऊपर, तो there are chances of self discrepancy, यानी कि जो उसका congruence होता है वो डिसकॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट होने लगता है. ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस, सॉरी, तो इनकॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट होने लगता है. उसका जो रियल सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, और जो आइडियल सेल्फ है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होने लगते हैं. तो दैट इज द स्टेज जो कि कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की वजह से मिलता है. सोसाइटी हमारे ऊपर कंडीशंस ऑफ वर्थ लगाती है, राइट. फॉर एग्जांपल अगेन वही है, अगर आप पढ़ाई अच्छी करोगे, 90% मार्क्स लाओगे, तभी आप सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो. These are conditions of worth. तभी आपकी वैल्यू है सोसाइटी में. इससे कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जनरेट हुआ. उसकी वजह से हम खुद के साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं, अरे मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे 90% भी नहीं आ पाए, राइट. और हम अपनी एक आइडियल सेल्फ की इमेज बनाते हैं, मेरा आइडियल सेल्फ वही है जो 90% ला पाए. अब हम उससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंस होगा, विच कैन लीड टू न्यूरोसिस. हमें परेशानी होगी, एंजाइटी होगी. ठीक है, लेकिन अगर हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, तो हम भी खुद से उतना ही, हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं एज वी आर, और हम अपने रियल सेल्फ के ज्यादा पास रह पाते हैं, और हमारी पर्सनालिटी ज्यादा कॉन्ग्रुएंट इन नेचर होती है. और ऐसी स्टेज में हम इजीली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा पाएंगे. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्चुअल एक्सपीरियंस काफी हद तक ओवरलैप हो रहे हैं. बट अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस मैच ही नहीं होते हैं, तो वो इनकॉन्ग्रुएंस लीड करता है, जिसकी वजह से हमें न्यूरोसिस होती है, एंजाइटी होती है वहां पे. Okay, so goal for Carl Roger was to help a person's self-image become more congruent. हमारी self-image और ज्यादा congruent होनी चाहिए with person's ideal self. So जैसा हम खुद को imagine करते हैं, उससे ज्यादा overlapping हमारी actual self-image होनी चाहिए. So this was about humanism. Anyone has any doubt till here? Please respond. No, ma'am. Then we have another school called existentialism, which talks about who we actually are. ठीक है, so there is this school also which deals with meaning of life. The questions like why do human exist, why do I exist, how shall I exist. So these are certain basic questions which a person faces in his or her life at least once. कभी ना कभी तुम सोचते हैं इन चीजों के बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ. ठीक है, तो these are existential questions. Soren Kierkegaard is known as father of existentialism. He was interested in man's relationship with God and its ultimate impossibility. According to him, man is finite and individual, whereas God is infinite and absolute. And man goes through three stages of existence: aesthetic mode, ethical mode, and religious mode. Aesthetic mode is concerned with here and now. Ethical mode consists with involves choices, and in order to break out of this, one must live in religious mode by making firm commitment to it. ठीक है, आप religious mode में जाते हैं तो आपको existential questions के थोड़े आंसर मिल सकते हैं. मैम ये वाली जो existentialism है, is it connected with positive psychology? Positive psychology ऐसा नहीं कह सकते डिफरेंट है मैम, है डिफरेंट है, ये एग्जिस्टेंशियल स्कूल डिफरेंट है. पॉजिटिव साइकोलॉजी में वेलबींग की बात की गई है इन जनरल. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल में पर्पस ऑफ लाइफ की ज्यादा बात की गई है. तो ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहेगा. हाँ, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा बहुत कनेक्ट हो सकता है. हु वी एक्चुअली आर, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था. बस एक रिलीजन वाला जो टॉपिक इसमें आता है वो कनेक्ट नहीं होगा.
हाँ, right ma'am? Okay ma'am, got. So then we have Friedrich Nietzsche, ये भी existential branch के philosopher है. He talk about will to power. Okay, so according to him there is no hope in afterlife. वो afterlife में believe नहीं करते थे. He believed that inequality was natural state of humanity. He felt that women should never expect same right as men. It is the creation of Superman that gives purpose to existence. ठीक है, तो वो he believed more on the power of man himself. Then we have Karl Jaspers. He talked about freedom, and he talked about freedom can be gained by union with God. Then we have Martin Heidegger, and यहाँ पर भी इन्होंने भी गॉड की बात करी है. He considered God as one of the greatest being in the world. But उन्होंने बोला ह्यूमंस भी उतने ही ग्रेट है जितना गॉड है. मतलब उन्होंने उनको इक्वालिटी पे लाके रखने की कोशिश की है. Heidegger considered individual as being who are all connected in being. Only humans are capable of understanding this connection between all beings. Beings की बात हो रही है, यानी कि all human beings, ठीक है, all living things. And he referred to this as discovery of Dasein. Dasein का मतलब है being here or existence. प्रेजेंट में रहना, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए टर्म यूज किया है. सो ही इंसिस्टेड दैट Dasein and being in the world are equal. एग्जिस्टेंस एंड बीइंग ह्यूमन इन द वर्ल्ड आर दो सेम ही बात है. हम ह्यूमन बीइंग और Dasein एग्जिस्टेंस, अगर हम है तो एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस की बात हो रही है तो हम है, इस तरीके का. Then we have Paul Sartre. He simply stated that God does not exist, and he has books like Transcendence of Ego, Existential Psychoanalysis, Being and Nothingness. ये उनके कुछ works हैं. Then we have very famous Viktor Frankl. His book is Man's Search for Meaning and the Doctor and the Soul. इनकी एक बहुत अच्छी सी किताब है, छोटी सी, ये Man's Search for Meaning वाली, which you all can refer. मेरे पास PDF होगा तो I'll share. He coined the term height psychology. ये term Viktor Frankl ने दिया था. Logotherapy का concept इन्होंने दिया था, where a therapist tries to find meaning or purpose in one's life. ठीक है, तो थेरेपिस्ट मदद करता है लोगों को उसके लाइफ का मीनिंग तक पहुंचने में, जानने में. काइंड ऑफ इकिगाई जो अभी हम पढ़ते हैं ना, उस तरीके का. ओके, so the person Frankl recognize three ways to find meaning in life. First is a deed we do or work we create. So whatever work we do, that is the one way. पर्पस और मीनिंग ढूंढने के लिए लाइफ में हमें एक रास्ता है, अपने काम के थ्रू हम अपने मीनिंग तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, whatever we love to do. Secondly, a meaningful human encounter, particularly involving love. तो जो हमारे रिलेशनशिप वाला पार्ट है, ठीक है, the how we connect with each other, ठीक है, that part, our relationship part, our feeling part, that is also important. Then we have choosing one's attitude in face of unavoidable suffering. और third thing is, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है कोई, तब हम कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, at the time of adversity in our life, what is our attitude? तो हमारा attitude at the time of adversity is one way. वहां से हमें मीनिंग मिलता है लाइफ में, क्योंकि जब आप विक्टर फ्रैंकल की बुक पढ़ोगे तो उनकी खुद की स्टोरी ही इसी टाइप की है. He was in the adversity phase of his life, और वहां से उनको फिर मीनिंग मिला अपनी लाइफ के लिए, राइट. तो at the attitude at the adversity stage, meaningful human encounter and the work we do, these are three main important things. He focuses on man's will to meaning, ठीक है, man search for meaning. और अगर ये मीनिंग नहीं मिलता है तो किसी को एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसको न्यूजेनिक न्यूरोसिस भी बोलते हैं.
ठीक है, when person struggles to find meaning in life. Logotherapy is used in therapies as a technique using Socratic dialogue, जो हमने कल भी पढ़ा था, question answer round. If I ask you something, ठीक है, ये होना चाहिए, then you negate it कि ये नहीं हो सकता है, या मैं आप ही को बोलूं just try to think what you want to do in life, तो आप कहोगे अरे मुझे ये पसंद नहीं है, rather than saying कि मुझे क्या करना पसंद है, आप ये भी तो कह सकते हो मुझे ये करना पसंद नहीं है. ठीक है, क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ऐसा है वैसा है इसलिए पसंद नहीं है, ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो पसंद है वो तो सामने आएगा. दैट इज टेक्निक ऑफ नेगेशन ऑल्सो. ठीक है, या फिर क्वेश्चन आंसर करते करते बहुत बार आपको आपका मीनिंग या पर्पस हिट कर जाता है. देन वी हैव अदर टेक्निक्स ऑल्सो. डी रिफ्लेक्शन, चीजों को जानने की कोशिश करना, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है, उसको बाहर निकालना ऑन अ पेपर और समथिंग. एंड देन अगेन द डायलॉग मेथड. ठीक है, आपका कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से उस काम को पकड़ा था, किस इंटेंशन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो बहुत ज्यादा, तो लाइक दैट लोगोथेरेपी इज बीइंग कंडक्टेड. Then we have Rollo May, and his book was on man's search for himself. His doctoral dissertation was the meaning of anxiety. He distinguished between anxiety and fear and between normal anxiety and neurotic anxiety. तो उन्होंने कहा कि normal anxiety और neurotic anxiety में भी फर्क होता है. He also talked about 4 types of love like sex, eros, philia and agape. He also wrote about love and will, and he talked about intentionality here. Then we have Ludwig Binswanger. इस पे questions आए हैं from this particular part. आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस, हमारा जो बीइंग इज अस, और हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के 3 पार्ट्स बताए हैं. वन इज बायोलॉजिकल पार्ट, दैट इज उमवेल्ड. वन इज सोशल पार्ट, दैट इज मिटवेल्ड, एंड अनदर इज इनर और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, दैट इज ईगनवेल्ड. ठीक है, उमवेल्ड इज in order to understand how existence feel, we need to be aware of our physical sensations like pain, pleasure, hunger, warmth. So whatever we are physically feeling or sensing, that is part of umwelt. Mythwelt is social relationships. कैसे आप दूसरों के साथ महसूस करते हो, आपके थॉट्स या फीलिंग्स कैसे हैं औरों के साथ, एक्सपीरियंस क्या है, that is mythwelt. And eagle wealth is your simply introspection, your inner self, your inner psychological experiences. ठीक है, that is ईगन वेल्थ. So these are the 3 parts of being alive. Existential psychology भी as a therapy यूज हो रहा है मीनिंग एंड पर्पस ढूंढने के लिए लाइफ में, एंड इट एक्चुअली हेल्प वन एज अ कोपिंग मैकेनिज्म. ठीक है, एक कोपिंग मैकेनिज्म देता है लाइफ को डील करने के लिए, रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, लोगों को करेज देता है सेल्फ डिस्कवरी में जाने के लिए और अपने जो लाइफ के करंट इश्यूज हैं उससे बाहर आने के लिए. So this was all about existentialism. Any doubt till here? Ma'am, humanism talks about exploring the fullest potential, self-actualization. Right. And on the other side, existential talks about the existence of a human being, consciousness of a human being. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, also about the meaning of life, ma'am, they sound quite similar, no? हाँ, ऐसा लगता है हमें, बट एक्चुअली जब उन्होंने दिया ना ये कॉन्सेप्ट ह्यूमनिज्म में और इसमें, they have their own definitions. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट रियलाइजिंग योर ओन सेल्फ. एंड गोल सीम्स टू बी क्वाइट सिमिलर. जब खुद को रियलाइज कर जाएंगे तो शायद आपके अपने गोल्स भी पता चली जाएंगे लाइफ के, राइट? दिस इज व्हाट यू मीन टू से? Yes, ma'am. Right. So at the end of the day, it actually seems similar. But existential की अगर हम बात करें ना, तो they
never talked about the basic requirements of life, the needs and the other things. ठीक है? They directly targeted that existential part of life. Why do Yes, we ma'am. exist on this earth? The purpose of life, the meaning purpose of life. They are directly targeting that point clearly. Yes, ma'am. Yes. Self-actualization is a broader term. It may include other things also. Yes, ma'am. Your Yes, growth indeed. aspect, name, fame, recognition, everything it includes. And Right? ma'am, humanistics are going step by step. Yes. First, they are covering the biological needs, social needs, Yes. and then the higher order needs. Yes. And Whereas, they are essentials. They are focusing directly focusing on the existential crisis, consciousness. Yes. And all. Yes. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Then we have transpersonal branch of psychology. ये बाद में आया था later on. इसका जो basics here comes your answer again, जो भी आप पूछ ही रहे थे. ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी कहते हैं, इसका जो बेसिक्स है, बेसिक फाउंडेशन है, वो कहाँ से आया? ह्यूमनिज्म से, यानी कि मैस्लो की थ्योरी से. और कहाँ से आया? एग्जिस्टेंशियलिज्म से, यानी कि विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी से, जो अभी हम बात कर ही रहे थे. ठीक है? तो लेटर ऑन ट्रांसपर्सनल ब्रांच बन गया टू डील विद सच थिंग्स, जिसको हम जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं. राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जर्नल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी शुरू हुआ. इसका रूट आप विलियम जेम्स और कार्ल यूंग के काम में भी देख सकते हो, बिकॉज इवन कार्ल यूंग टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी और कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स उनके काम में भी दिखाई देते हैं. ठीक है? Again, transpersonal psychology has nothing to do with religion, everything to do with mind and behavior. It looks at the overall human experience. Okay. Again, from this reference, transpersonal psychologists attempt to integrate timeless wisdom with modern Western psychology, translate spiritual principles into scientifically grouped contemporary language. Transpersonal psychology address full spectrum of human psycho-spiritual development, from our deepest wounds or needs to the existential crisis of human being to the most transcendent capacities of our consciousness. बात वहीं की वहीं है. वो क्या बात कर रहे हैं? फुल स्पेक्ट्रम. किस सेंस में फुल स्पेक्ट्रम? साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी हमारा फुल डेवलपमेंट हो पाए, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे रिजॉल्व हो पाए, हम ट्रांसडेंटल कैपेसिटीज यानी कि वो जो हमारा पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल को रीच कर पाए, अपने कॉन्शियसनेस को फुल्ली अनवील कर पाए. So this is all what they are talking about. It is strongly influenced by human potential and counterculture movements and wave of psycho experimentation. Obviously जब psycho experimentation का टाइम आया है तो ट्रांसपर्सनल काफी पीछे छूट गया. ठीक है? At the same time, it was an attempt to integrate ideas and insights of Western psychology with insights of Eastern spiritual traditions like Buddhism, Vedanta, Yoga. So, transpersonal एक और तरीका है Eastern ideas को Western के साथ जोड़ने का. ठीक है? And according to Maslow, transpersonal psychology is was to explore the farther reaches of human nature. ठीक है? Human nature को reach करना, जो कि इन डेप्थ इनसाइट्स है हमारे ह्यूमन नेचर के, वहां तक पहुंचना. दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. सो इट माइट लूजली बी कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड areas of human mind which search for higher meaning in life, which move beyond limited boundaries of ego to access enhanced capacity of wisdom, creativity, unconditional love and compassion. ठीक है? सो ये वही सारी बातें हैं जो हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं. There are again 6 main features about it. It doesn't have specific tool or method. Relationships in transpersonal psychology are the key. Therapist isn't viewed as expert. ठीक है? Therapist facilitator की तरह काम करता है. Okay? Not as in very much expert. मतलब आपकी फ्रेंड की तरह आपका काम करेगा, आपको पुश करेगा, आपको सच्चाई जानने में मदद करेगा. Transpersonal psychology doesn't judge other experiences. जो लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं उसको जज नहीं करता है कभी.
Various well-known psychologists pioneered transpersonal psychology. So James, Carl Jung, Maslow, they are the few psychologists जो transpersonal के साथ जुड़े हैं. William James was the first one who used the term transpersonal in 1905 lecture, according to the textbook of transpersonal psychiatry and psychology, and he's referred as the founder of modern transpersonal psychology and psychiatry. Okay, so this was about transpersonal psychology. Now we are left with two more schools. छोटे छोटे हैं. We'll cover it today because we already have lot of content for tomorrow. Then we have multiculturalism. ये सब later on add हुए हैं इसमें, ठीक है. Multicultural psychology, as the name suggests, you all can know ना. It is about studying and understanding different culture background, ठीक है, और उसका psyche पे effect देखना. लोगों की साइकोलॉजी उनकी कल्चरल सेटअप से इन्फ्लुएंस होती है, तो उसको स्टडी करना भी जरूरी होता है. ओके, सो इट हैज बीन कंसीडर्ड एज द फोर्थ फोर्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. It states that field is interested in what happens when people of different background interact with one another. ठीक है, हम अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे क्या पड़ता है, हमारी साइकी पे क्या पड़ता है. Bochner defined culture as critical incident where people from different culture, ethnic or linguistic background come into social contact with each other. Contacts that occur between members of culturally diverse society or between people of many different background. Same बात हो रही है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोसाइटी से लोग आए हैं, अलग अलग कंट्री से भी लोग आए हैं. टूरिज्म का रोल आता है, फिर बिजनेस का रोल आता है. ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी में. It can be viewed in 4 distinct ways. पहला, demographic reality as a result of globalization, talent flow, forced migration, family reunification. तो अब क्या होता है, टैलेंट फ्लो, यू नो, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहीं फिर पैसों के लिए स्टैब्लिश हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, ठीक है. And not just Indian, Africans and from people from other countries also go to US. वहां पे क्या होता है, मिक्स्ड कल्चर हो गया है क्रिएट, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस. एक मिक्स कल्चर क्रिएट हो गया है, एंड दे हैव डेवलप्ड अ न्यू साइकी आल्सो. उनका इफेक्ट पड़ता है वहां पे. देन वी हैव पॉलिटिकल फिलॉसफी रिलेटेड टू इमिग्रेंट इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस. तो जिस देश में लोग जाते हैं उस देश की अपनी फिलॉसफी होती है, यानी कि एंड दे यूज्ड टू मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इमिग्रेंट्स दे हैव. अगर यूएसए में ज्यादा इंडियंस होते हैं, एनआरआई होते हैं, तो वो एनआरआई के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज भी बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से रह पाए, उनको कोई परेशानी ना हो. राइट. सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो, अगर कोई बाहर देश से कोई आता है तो वी हैव certain specifications, certain facilities which are given to them. Then third, we have government and organization. It is a vehicle for government and organization to formulate policies based on their views and attitude of multiculturalism. Again, same बात है, एक हुआ political setup, दूसरा हुआ ये गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है फॉरेनर्स को ध्यान में रखते हुए. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो रिसेंट न्यूज आई है कि अब ऑक्सफोर्ड के स्कूल हमारे यहाँ भी स्टैब्लिश होंगे, इंडिया में भी खुलेंगे, राइट. तो इट इज अगेन इनवाइटिंग मल्टीकल्चरलिज्म, और उससे हम सबकी बच्चों की साइकोलॉजी पे फर्क पड़ने वाला है. प्लस हमारी गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन कर रही है, राइट. देन वी हैव डिस्कोर्स ऑफ गवर्नमेंट टू सिग्नल देयर डायरेक्शन ऑन मल्टीकल्चरलिज्म. सेम वही कहानी है, बट ये गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म देती है मल्टीकल्चरलिज्म को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, उस पर बातचीत करने के लिए, और दूसरे कंट्रीज के साथ हमारा तालमेल भी बढ़ाती है, फॉरेन पॉलिसीज डेवलप होती हैं, ठीक है. ये डिपेंड करता है, इसकी जो सक्सेस है अकॉर्डिंग टू जॉन बेरी डिपेंड्स ऑन कल्चरल मेंटेनेंस बाय इमिग्रेंट्स एंड कल्चरल एक्सेप्टेंस बाय होस्ट स्पीसीज. यानी कि एक तो है हम जा रहे हैं बाहर देश और हम वहां पे इंडियन कल्चर मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस हुई. दूसरा है हमारे बिहेवियर को कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे.
कितना वो लोग कितना इनडिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं या कितना एक्सेप्टेंस है, कितना खुशी खुशी वो हमारे कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये दो मेन क्राइटेरिया हैं जो डिटरमाइन करते हैं चीजों को। वीक कल्चरल मेंटेनेंस अगर होगा, अगर हम लोग जाके अपना कल्चर मेंटेन नहीं करते हैं, हम जैसा देश वैसा बेस वहीं के हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हम एसिमिलेट हो जाएंगे उन्हीं के कल्चर में। ठीक है, और अगर वो लोग हमारे कल्चर को जितना अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं तो हम बैलेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो देयर आर चांसेस थोड़ा बेटर आउटकम होगा, हम अपना एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे अगर वो लोग भी एक्सेप्टिंग हो जाते हैं तो। There are certain advantages and disadvantages of multiculturalism across different countries. In Canada, multiculturalism is a source of national identity. So much that multiculturalism is cited as the second greatest source of pride among Canadians. ठीक है, वहां पर इसको प्राइड की तरह लिया जाता है। इट इज अ सोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो दे एक्सेप्ट मल्टीकल्चरलिज्म, उन्हें अच्छा लगता है कि ठीक है बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके देश में आइडेंटिटी ले रहे हैं। ओके, multiculturalism can create fault lines by reinforcing separateness and differences based on ethnicity और religion. ये जो कभी कभी रेसिज्म के केसेस हम सुनते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ये इसका वीक पॉइंट है मल्टीकल्चरलिज्म का। ठीक है, कभी कभी उनको राइट्स भी नहीं मिलते हैं उनके। देन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्या करते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए वहां बुलाते हैं या स्किल्ड वर्कर्स वहां पे बुलाते हैं, तो वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हैं। Multiculturalism is sometimes seen as an obstacle to equality in Western society that value human rights and fair treatment. Again, कभी कभी ये थ्रेट की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर देश में अगर हम जा रहे हैं, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस में कोई एक चीज पर्टिकुलर कल्चर में बहुत रिजिड है, जैसे कि सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस wearing a hijab और निकाब is good, मतलब when it comes to Islamic countries, but हो सकता है किसी different country में अगर आप जाओ तो वो उसको उस चीज को वैल्यू ना कर पाए उतना। ठीक है, सो उनको ये चीज जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट लगेगी, राइट? सो इट मे बिकम थ्रेट टू सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस एज वेल। And this is the last school we have. It is about cognitive revolution, जहां पे अगेन हम बैक टू माइंड आए, बिहेवियरिज्म में चलेगा, आउटर वर्ल्ड में चलेगा, अब हम वापस अपने माइंड की तरफ लौट रहे हैं थ्रू कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यहाँ पे बात होती है लिंग्विस्टिक की, न्यूरोसाइंस की, कंप्यूटर साइंसेस की, एंड हाउ आवर माइंड इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज, और कैसे हमारी साइकी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का, जो कि जिसमें मिलर का नाम आता है। ये बताया था अल्रिक नीसर ने, कॉग्निटिव साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक लिखी थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें नाम डाला था। नॉर्म चॉम्स्की का नाम आता है। अगेन इन्होंने लैंग्वेज पे, लिंग्विस्टिक स्किल्स पे बात करी थी, और उनका कहना था ये इनबिल्ड होता है, जेनेटिक होता है हमारे अंदर। ठीक है, उन्होंने ये हम लैंग्वेज में डिटेल में पढ़ते हैं, बट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करी थी और कहा था ये हम सबके ब्रेन में पहले से ही होता है, इसलिए बच्चे फटाफट कोई भी लैंग्वेज सीख जाते हैं। ठीक है, सो then again interdisciplinary approach was referred to as cognitive sciences, and individual and prominence of this particular perspective resonates in modern day psychology. आज के टाइम में इट इज अ टाइम ऑफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरो साइंसेस की भी बात कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डील इन ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, स्पेशली इन अप्लाइड साइकोलॉजी इन डिटेल. सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरलिज्म से, फिर फंक्शनलिज्म पे गए, देन वी ग्रेजुअली शिफ्टेड टू अदर स्कूल्स. वी हैड psychoanalytic theory, we have behaviorism, we have cognitive psychology. In between we read about humanistic existentialism, transpersonal psychology. So these were about the schools of psychology.
rest of the topics, these 4 founding parts and all, we will discuss all these in tomorrow's class. I guess this is more than enough for today's class. Any doubts to anyone? No, ma'am. Okay, so I don't have polls for today because these topics are going to be covered again and again throughout all the units, क्योंकि ये basic psychology schools हैं आपके, ये डिटेल में बाद में दोबारा कवर होने वाले हैं सब. So I haven't added specific questions for it in today's class, but although we will discuss few of them in the mock test. Okay, day after tomorrow in the mock test we'll discuss.